وادی کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کو ملیٹنسی مخالف کارروائیوں میں کافی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ آئے روز ہو رہے انکاؤنٹرز میں ملیٹنٹ کی بڑی تعداد کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ آج کلگام کے گجرپورہ دمہال ہانجی پورہ میں ہوئے ایک انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹ ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ابھی جاری ہے۔ آئی جی پی کشمیر کے مطابق مہلوک ملیٹنٹوں میں سے ایک کا تعلق لشکر سے اور دوسرے کا جیش سے تھا۔ دونوں کی شناخت سری نگر کے حارث شریف اور کلگام کے ذاکر پڈر کے طور پر ہوئی ہے۔ علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے محاصرہ و تلاشی کارروائی شروع کی تھی۔ اسی دوران ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں ملیٹنٹوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آخری اطلاع ملنے تک علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری تھا۔ کپواڑہ ضلع کے چندیگام لولاب کے جنگلات میں فوج اور ملیٹنٹوں کے درمیان انکاؤنٹر جاری ہے۔ اس انکاؤنٹر میں اب تک لشکر طیبہ کے 2 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس اور فورسز نے ایک کارروائی کے دوران فیاض احمد نامی ایک ملیٹنٹ کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس کے انکشاف پر لولاب کے جنگلات کا محاصرہ کیا گیا اور تلاشی کارروائی شروع کی گئی۔ پولیس اور فوج کے مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران وہاں چھپے ملیٹنٹوں نے فوج پر فائرنگ شروع کی۔ اس کے بعد انکاؤنٹر شروع ہوا۔ اب تک 2 ملیٹنٹ مارے گئے۔ آئی جی پی کشمیر نے ایک ٹویٹ میں ملیٹنٹوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ ایس ایس پی کپواڑہ یوگل منہاس نے نیوز 18 کو فون پر بتایا کہ محاصرے میں 3 سے 4 ملیٹنٹ پھنسے ہو سکتے ہیں۔ گرفتار ملیٹنٹ بھی فائرنگ کے نتیجے میں لاپتہ ہو گیا ہے اور اسے ڈھونڈ نکالنے کے لیے بھی تلاش جاری ہے۔ آخری اطلاعات ملنے تک انکاؤنٹر اور شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری تھا۔ علاقے میں زبردست بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کی وجہ سے آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تاہم پولیس ذرائع کے مطابق پورے جنگلاتی علاقے کو محاصرے میں لیا گیا ہے۔ چنڈیگام لولاب انکاؤنٹر میں ابھی تک 2 ملیٹنٹ مارے جانے کی خبر ہے۔ آئی جی پی کشمیر نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ لولاب انکاؤنٹر میں ابھی تک 2 ملیٹنٹ مارے گئے، جبکہ ایس ایس پی کپواڑہ یوگل منہاس نے نیوز 18 کو فون پر بتایا کہ ابھی پولیس کو شبہ ہے کہ 3 سے 4 ملیٹنٹ علاقے میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے پورے جنگلاتی علاقے کو محاصرے میں لے رکھا ہے اور بڑے پیمانے پر چھپے بیٹھے ملیٹنٹوں کی تلاش جاری ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو ملیٹنٹ پہلے ہی گرفتار کیا گیا تھا، اس کے ہی انکشاف پر لولاب چنڈیگام فارسٹس میں جڑپ شروع ہوئی، لیکن ایس ایس پی کے مطابق جو ملیٹنٹ پہلے ہی پکڑا گیا تھا وہ بھی فائرنگ کے نتیجے میں وہاں پر فرار ہوا اور اس کی تلاش بھی بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ نیٹ ورک 18 کے لیے کپواڑہ سے یحییٰ سلطان۔ کپواڑہ کے ونگام میں البدر تنظیم کے 3 اوور گراؤنڈ ورکرز کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ونگام کراسنگ قومی شاہراہ پر 3 نوجوانوں کو روک کر تلاشی لی اور ان کے قبضے سے ایک پستول، میگزین، 8 گولیاں اور 2 ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوئے۔ تینوں کی شناخت کھئی پورہ کرال گنڈ کے رہنے والے ناظم احمد بٹ، سراج الدین خان اور عادل گل کے بطور ہوئی ہے۔ ابتدائی جانچ میں پتہ چلا کہ ان کا تعلق ممنوعہ ملیٹنٹ تنظیم البدر سے ہے اور انہیں علاقے میں انتہا پسند سرگرمی انجام دینے کے لیے پاکستانی ہینڈلرز نے ذمہ داری سونپی تھی۔ پی ڈی پی ترجمان ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ بی جے پی نے دعویٰ کیا تھا کہ کشمیر اور نئی دہلی کے درمیان دوریاں نہیں رہیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انتخابات کے انعقاد پر ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے بتایا کہ سیاسی پارٹیاں ہر وقت تیار رہتی ہیں اور پی ڈی پی بھی انتخابات کے لیے تیار ہے۔ تاہم انتخابات ہمارے لیے ترجیح نہیں ہے کیونکہ انتخابات کے بغیر بھی یہاں مسائل ہیں۔ ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ کسی کو انتظامیہ کے خلاف بات کرنے والی افراد کی زبان بند کی جا رہی ہے اور ان پر کیس درج کیا جا رہا ہے۔ کیا گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ دل کی دوری اور دلی کی دوری، لیکن اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوریاں ہو رہی ہیں اور مائنارٹیز کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ اگر کسی نے کہیں بات کی تو اس کو سزا دی جاتی ہے، بلڈوزر لگائے جاتے ہیں۔ یہی باقی جگہوں پہ ہو رہا، مرڈرز ہو رہے ہیں انڈیا میں، لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ آج اگنی پت کا معاملہ لے لو یا باقی پالیسیز لے لو، کسی بھی پالیسی میں عوام کہیں پہ خوش نہیں ہے۔ اور جو یہ پولرائزیشن کی پالیٹکس ہو رہی ہے ہندو سکھ مسلمان کو دور کرنے کی، تو ہم کشمیر میں اس چیز کی مثال دیتے ہیں جو آج ہم سارے کھڑے۔
वादी भद्रवा में ब्रॉडबैंड और दीगर फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सर्विस इतवार को बहाल कर दी गई। दिन में 11:15 पर फिक्स्ड लाइनों पर इंटरनेट सर्विस बहाल की गई। फर्कावाराना कशीदगी के बाद 9 जून को यह सर्विस मुनक़ता कर दी गई थी। शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना तबसरे करने वाले बीजेपी लीडरों की हिमायत में वादी भद्रवा के कुछ दाएं बाजू अनासिर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। भद्रवा शहर में एहतियाती तौर पर मोबाइल इंटरनेट खदमात अब भी मुअत्तल रखी गई हैं। सरकारी हुक्काम ने आज यहां कर्फ्यू में 12 घंटे के लिए ढील दी। अहदेदारों ने बताया कि भद्रवा में दफा 144 के तहत आयत पाबंदियां कर्फ्यू में नरमी की मुद्दत के दौरान भी लागू रहेंगी। भद्रवा के एक पुलिस एहलकार ने कहा कि सूरत हाल काबू में है और कहीं से कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ है। अमल है और जो बच्चे हैं जो एस्पायर से, चाहे वो नीट के लिए है या बाकी एग्जाम्स के लिए है, मुझे लगता है उनको आने वाले वक्त में इससे आसानी होगी, क्योंकि नहीं तो उनको यहाँ से जम्मू या और कहीं जाना पड़ सकता था, लेकिन अब यहाँ पे रेस्टोर हुआ। मुझे लगता है उनके लिए खुशाइंदा बात है। बहुत राहत मिली, बच्चे उनके एग्जाम चल रहे हैं, टूरिस्ट सीजन है, इस समय टूरिस्ट आ रहा है और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो टूरिस्ट आ रहा है तो मोबाइल नेटवर्क भी इन्होंने छोड़ना चाहिए। और ये खुशी की बात है, इन्होंने 11 दिन के बाद आज नेटवर्क छोड़ दिया है। जिला पुंछ की मंडी तहसील में दूसरे रोज भी जमकर बारिश होती रही। इसी बीच पुंछ मंडी सड़क पर वाक़े गांव सिकलों में मिट्टी के तोदे और पत्थर खिसक आए। इस लैंडस्लाइड के नतीजे में 4 दुकानें और एक ट्रक मलबे के नीचे दब गए। ट्रक में बैठा ड्राइवर फंस गया था। लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही आम लोग, पुलिस, आर्मी और बीएसएफ ने मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत के काम अंजाम दिए। 4 जेसीबी मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक से मलबा हटाकर ड्राइवर मोहम्मद आरिफ को जिंदा हालत में मंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महलूक ड्राइवर मंडी के बायला का रहने वाला था। आज इतवार होने की वजह से दुकानों में कोई भी मौजूद नहीं था। आखिरी इत्तलात मिलने तक मंडी पुंछ के सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने के काम जारी थे। स्टेशन ने बहुत ही अच्छा कारनामा दिखाया है, इसमें बहुत ही मेहनत के साथ काम किया है, पब्लिक के लिए रास्ता हमवार कर दिया है। 1-1.5 घंटे में 3 मशीनें लगातार काम कर रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। दिन के तकरीबन 3:30 बजे नियर बस स्टैंड मंडी फ्लोर बस्ट हुआ, जिसकी वजह से एक लोड कैरियर जो ड्राइवर था वो ट्रक के बीच था, जो मलबे के नीचे आ गया था और अनफॉर्चुनेटली उसकी अभी लेटेस्ट जस्ट उसकी डेथ भी हो गई है। और जो लॉस हुआ है हम उसको असेस कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली आफ्टर असेसमेंट लोगों को कम्पनसेट किया जाए। गुज़श्ता रोज की मूसलाधार बारिश की वजह से नाला विशु में तुग़यानी आने से कुलगाम को दमहाल हेडक्वार्टर से जोड़ने वाला अहम डायवर्शन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। एडिजन के मकाम पर कायम डायवर्शन पानी के तेज बहाव से ढह गया है। मकामी लोगों ने पुल की तामीर का काम मुकम्मल करने और आए दिन की मुश्किलात से निजात दिलाने पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर सकीनातु ने डायवर्शन और पुल की तामीर को लेकर तशवीश जाहिर की और इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। खतरा है और हमें बहुत मुश्किलों का सामना यहाँ करना पड़ता है और यहाँ मामूली सा बारिश का 1-2 कतरे होते हैं। यहाँ मामूली सी बारिश की वजह से कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं और हम इस वक्त 2 लोग रिस्क ले रहे थे, क्यों मेरा बच्चा घर पे बीमार है और उसकी वजह से मेरे पास कोई लिफ्ट नहीं था, कुछ नहीं था, हम गरीब लोग हैं। 8 साल से गवर्नमेंट ने जो उधोरा ब्रिज छोड़ा है, जो एनसी की सरकार में काफी हद तक बना हुआ था, लेकिन उसके बाद उसमें गवर्नमेंट ने कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई। अगर वो ब्रिज जिसका इन्होंने टाइम भी मुकर्रर किया हुआ था कि इतनी देर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन 8 साल गुजरने के बाद भी अर्जन ब्रिज को कंप्लीट नहीं किया गया है और डाइवर्जन की वजह से जब भी बारिश आती है नुकसान होता है और बहुत बड़ी आबादी जो दमहाल हाजीपुरा की है और या कुलगाम की है, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के 15वें किस्त में बांडीपुरा के कहनुसा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 90 साला अब्दुस्समद की खूब सताइश की। अब्दुस्समद काफ़ी अरसे से धान की घास से चप्पल बनाकर कश्मीर के कदीम फ़न को जिंदा रखे हुए हैं। घास से बनी इस चप्पल को कश्मीर में पुलहोर कहते हैं और यह पुलहोर सदियों से कश्मीर की तहजीब का एक हिस्सा रहा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पुराने ज़माने में पुलहोर का काफ़ी चलन था और यह हल्का होने के अलावा इसमें फिसलन का खतरा भी नहीं होता है।
पहले तक जम्मू कश्मीर में पैदी घास के बने चप्पल कमोबेश एक रिवाज की तरह प्रचलित थे। एनवायरमेंट फ्रेंडली इन चप्पलों का मार्केट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि लोग इसे स्थानीय कला का अहम हिस्सा मानते हैं। समय के साथ अन्य कलाओं की तरह पैडी के चप्पलों के मार्केट में गिरावट आई, लेकिन आज भी बांदीपुरा के रहने वाले 90 वर्षीय बुजुर्ग अब्दुल समद साहब इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से इंतजामात को मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि इस बार यात्रा में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात के अलावा तिब्बी व दीगर इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है और मुक़द्दस गुफा तक यात्रा ट्रैक को भी काबिल आमद रफ्त बना गया है। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। हिमालय की आगोश में बाबा बर्फानी की गुफा में मुक़द्दस शिवलिंग के दर्शन के सिलसिले में अमरनाथ यात्रा 2 साल के वक्फे के बाद इस साल मुनक्किद होगी। 30 जून से शुरू होने वाली यात्रा के सिलसिले में भी पहले ही तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि चंदनवाड़ी और बालतल के रास्तों से मुक़द्दस गुफा को जाने वाली हिमालयाई ट्रैक को आमदरफ्त के काबिल बनाने का काम भी आखिरी मराहिल में है। इंतजामिया ने पहले ही मुख्तलिफ पड़ाव समेत मुक़द्दस गुफा तक पेश कदमी की है और बिजली व मवासलात समेत तमाम दीगर इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। हर एक ट्रांजिट कैंपस में कैंप डायरेक्टर्स लगाए गए हैं, मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट नोडल ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी तो मुझे लगता है ट्रैक की क्लियरेंस वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अगर कहीं पे रेल्स का कुछ इशू है या बाकी है, वो भी विद इन वेल टाइम वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। यात्रा के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजामात हैं। जम्मू से कश्मीर किसी भी यात्रा गाड़ी को बगैर आरोपी चलने की इजाजत नहीं होगी। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की खिदमत के अलावा 3 सतही सिक्योरिटी का नज़्म रहेगा। हम इस वक्त पहलगाम के मेन फ्रिस्किंग पॉइंट पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। ये मेन फ्रिस्किंग पॉइंट पहलगाम है, जहां पर हर आने जाने वाली गाड़ी को यहां पर रोका जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर यहां पर जो एक्सरे मशीन्स है वो इंस्टॉल की जाएंगी। इसके अलावा जो कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, उनको इंस्टॉल किया जाएगा और यहां तक कि आम जनता के साथ साथ जो यात्री आएंगे अमरनाथ यात्रा, उनकी भी बाज़ाब्ता तौर पर फ्रिस्किंग होगी और इन पॉइंट से उनको गुजरना होगा। ये सिक्योरिटी के एतबार से काफ़ी अहम है, काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है, ताकि किसी भी जो मुमकिन गड़बड़ है उसको रोका जाए और यात्रियों की सुरक्षा जो है उसको यकीनी बनाया जाए। इस बार यात्रियों व सर्विस प्रोवाइडर्स की नक्लो हमल पर नजर रखने के लिए RFID और GPS चिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कि हम GPS एंड जो RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग्स है उसके थ्रू मॉनिटर करें हर एक इंडिविजुअल को, वो बेसिकली जो एस्टेट है यात्रा के, तो इज अ पॉजिटिव। यात्रियों की तिब्बी निगहदाश्त के लिए डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जानिब से इस बार खास इंतजामात किए गए हैं। जी, इस साल यात्रा में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो पहले नहीं थी। जैसे हमारे चंदनवाड़ी में एक 52 बेडेड DRDO हॉस्पिटल बना रहा है, जो बहुत ही हाईटेक हॉस्पिटल जो DRDO बना रही है, जिसमें हमारे पास 25 बेड्स ऑक्सीजनेटेड बेड्स होंगे, जिसमें 25 बेड्स रूटीन बेड्स होंगे, 4 ICU बेड्स होंगे। इसी तरह बालतल से एक और DRDO हॉस्पिटल बना रहा है। बाबा अमरनाथ की मुक़द्दस गुफा सतह समंदर से 12,756 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और इस साल 8 लाख के करीब यात्रियों की आमद मुतवक्के है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के तनाजुर से अहम तरीन यात्रा श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ हिंदुओं के लिए अहम है, बल्कि कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान इसमें पेश रहता है और अपनी हर खिदमत अंजाम देता है। इस साल की यात्रा में जहां इंतज़ामिया के लिए काफ़ी चैलेंजेस पैदा हो गए हैं, वही इंतज़ामिया का मानना है कि इस यात्रा को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी अपनाया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पिशु टॉप से मुदस्सिर कादरी। बच्चा मजदूरी की रोकथाम के आलमी दिन के सिलसिले में श्रीनगर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का हफ्ता मनाया गया। इस दौरान चाइल्ड लाइन श्रीनगर ने रैली निकलवाई, मबाहिस मुनक्किद कराए, पेंटिंग और बेदारी सेशन भी रखे।
14 साल से कम उम्र बच्चों को पुरखतर पेशे अपनाने से दूर रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। मजदूरी पर मजबूर बच्चों के तई समाज की जिम्मेदारियों के हवाले से बेदारी पैदा की गई। इख्तितामी तकरीब बैतुल मीरास आले कदल में मुनक्किद की गई थी। इस सिलसिले में चाइल्ड लाइन श्रीनगर ने हेल्प फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के इश्तराक से एक प्रेस मीट का एहतमाम कराया। किश्तवाड़ पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ मकामात से 5 बदनाम जमाना मुनशियात स्मगलरों को हिरासत में लिया। पकड़े गए मुलजिमों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। मुलजिमों के कब्जे से मजमूई तौर पर 28 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। जानकारी मिलने पर मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके कार्रवाइयां अंजाम दी गई। पुलिस स्टेशन चतरू के हुदूद में एक बाइक को रोककर तलाशी ली गई तो 18 ग्राम हेरोइन पाई गई, जिस पर गाड़ी पर सवार लोगों को पकड़ लिया गया। किश्तवाड़ के गिरीनगर में एक कार रोक की गई तो उसमें 10 ग्राम हेरोइन मिली। किश्तवाड़ के सुरनकोट और जरगर मोहल्ले के रहने वाले मुलजिम अब पुलिस गिरफ्त में हैं। रामबन में कुदरत के दिलकश मनाजिर से घिरी वादी अनील का एक गांव गगड़नाक इस दौर में भी सड़क, बिजली, पानी, सेहत और तालीमी एतबार से पिछड़ा हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक वो जिला इंतजामिया से सड़क राब्ते के लिए बारहा नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मरीजों को चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है। कई किलोमीटर तक घोड़े खच्चरों पर सामान लाद कर ले जाया जाता है। इधर कोई लिंक रोड नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाएगा अचानक, अगर कोई डिलीवरी होगी तो उसमें बहुत मुश्किलात हो जाते हैं। यहाँ से चारपाई पर उसको ले जाना पड़ता है। अलजी मनोज सिन्हा साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इस गगड़नाक के अंदर कम से कम 2 या 4 किलोमीटर जो रोड है इसकी सैंक्शन फौरी तौर किए जाए। 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर से जो राशन ढुलान कर रहे हैं, खासकर गगड़नाक के लोग, कंतरागन के लोग, लिहाजा रोड की हमारी डिमांड, डीसी साहब से हमारी गुजारिश है, आपसे भी यही गुजारिश है कि ये बात हमारी आगे पहुंचाए। कम से कम लिवरा टू गगड़नाक रोड जो है उसको टेंडरें होनी चाहिए। इस गांव में महकमे बिजली की स्कीमें भी नाकाम साबित हुई हैं। बिजली की तरसीली लाइनें दरख्तों और लकड़ी के खंभों से जोड़ी गई हैं। यहाँ के लोग हर घर नल, हर घर पानी वाले नारे से कोसों दूर है। लोगों को पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए काफी मुश्किलात झेलनी पड़ती है। पानी घर घर चाहे, कनेक्शन चाहे। आप इस वक्त भी आप देखो कहाँ से पानी लाते हो और अलवोस पे पानी लाना पड़ता है 2-2, 3-3 किलोमीटर पर। कोई पानी नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है। जाते हैं गवर्नमेंट के पास, कहते हैं अलवोस में कनेक्शन नहीं है, गगड़नाक में कनेक्शन नहीं है। जब आते हैं पाइप कहाँ जाते हो? गगड़नाक इलाका बरसों से हुकूमत और इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार रहा। पंचायत राज निजाम आने के बावजूद भी मसाइल हल करने के लिए लोगों की नुमाइंदगी कारगर साबित नहीं हो रही है। जिला रामबन के सबसे पिछड़े गांव गगड़नाक की आपने तफसीली रिपोर्ट देखी। अब हुकूमत व इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितनी भी स्कीमें हैं उनको कागजों तक ही महदूद न रखे, बल्कि ज़मीनी सतह पर यहाँ पर लोगों को उन तमाम स्कीमों के फायदे पहुँचाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए बिलाल बाली, गगड़नाक नीर। कुपवाड़ा जिले के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जांगली में असातिज़ा की कमी की वजह से तलबा की पढ़ाई मुतासर हो रही है। स्कूल में तैनात असातिज़ा भी इंतजामिया से खफा है। मिडिल स्कूल में सिर्फ 3 टीचर दस्तयाब हैं और जगह की कमी का भी मसला दरपेश है। चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा रियाज अहमद मीर ने स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान वालिदैन, तलबा और असातिज़ा ने स्कूल में मुश्किलात के हवाले से चेयरमैन को आगाह किया। रियाज अहमद मीर ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस मामले को महकमे तालीम के आला अफसरान और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर के साथ उठाएंगे। एक ही क्लास में 2-2 सेक्शन के बच्चे पढ़ रहे हैं, 7th और 8th एक क्लास में पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इन टीचर्स ने बताया कि इनके पास जो है स्टाफ कम है क्योंकि टीचर्स की कमी है। और बाकी इन्होंने दूसरी चीज़ हमारे नोट्स में ये लाया कि कई स्कूल ऐसे भी है जहाँ बिल्कुल जो है बच्चों का रोल जो है वो काफ़ी कम है और टीचर्स ज़्यादा है।
तो मैं आपके चैनल के थ्रू एक तो अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब है कि वो एक बार मेहरबानी करके खुद आ जाइए और पर्सनली देखिए कि ये जो चीज़ें हैं, जो बच्चे हमारे, जो आने वाला फ्यूचर हमारा है, इनको जो है, जो यहाँ पे स्टाफ की कमी है या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो कमी है चीज़ों को, तो इंशाल्लाह मैं खुद भी ये आगे जाके टेकअप करूँगा, लेकिन उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके देखें। हमारे साथ ये स्कूली माँ का सलूक किया जा रहा है या हम यूं ही बोल रहे हैं? आपने खुद देखा यहाँ पे मिडिल स्कूल है, 110 रोल है, 2 या 3 टीचर हैं, वो क्या पढ़ाएंगे और हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? एक और मिसाल आपको, इसके बाद कोई स्कूल यहाँ पर खुला है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, 7 या 8 टीचर हैं वहाँ पे। यहाँ पे इस टाइम पे 3 टीचर हैं जी, और जिसकी वजह से हमारे स्कूल को इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। एक साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को इकट्ठा करना पड़ता है, जिसे फोर्थ वालों को फर्स्ट का पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट वालों को फोर्थ का सिलेबस पढ़ना पड़ता है, और जिसमें बेचारों को ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। जगह की कमी है, जगहों की कमी की वजह थोड़ी बहुत तो थी, मगर अब जब स्टाफ पूरा था तब हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन अब जब स्टाफ भी पूरा नहीं है तो हमें सारे बच्चे एक ही जगह रखने पड़ते हैं। जब अगर हमें 1-2 टीचर अगर हमें अरेंजमेंट बेस पे ही दे दे। कारबला त्राल में गुज्जर लड़कियों के लिए KGBV हॉस्टल व स्कूल का काम अभी भी नामुकम्मल है। लोगों का कहना है कि साल 2005 में इस हॉस्टल का काम शुरू हुआ था। महकमा इस इमारत पर सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके की 50 गुज्जर लड़कियां त्राल में एक निजी इमारत में तालीम हासिल कर रही हैं। हॉस्टल का काम महकमा एजुकेशन कर रहा है। महकमे के जेई जावेद अहमद ने बताया कि हॉस्टल के लिए 1 करोड़ रुपया DPR बनाया गया, ताहम अभी तक उन्हें सिर्फ 60 लाख रुपए मिले हैं। उन्होंने बताया कि बाकी पैसा वागजार होने के बाद ही इमारत का काम मुकम्मल किया जाएगा। बच्चन तो प्रॉब्लम गसन, गवर्नमेंट वन हो कर यह करो, मगर लेकिन पूर गसन कहीं तो बहुत तुंद वसा गवर्नमेंट अपील कर कि यह कर जल्दी शिफ्ट योर, ये लगे रपे 10 लाख, ये देवार क्या हिली एरिया, ये बच्चन मज खतर बासान, योर हेकन तम यिथ कि अगर देवार बंदी ग, पावर फिटिंग ग, आब ग चालू। सन गुजारिश ये गवर्नमेंटस अपील कर दी तो अत तवज्जो जनाब बिली यम करतन काम, यम करतन ये फिटिंग तो ये देवार फिट बे करतन शिफ्ट योर वापस, ये गए गवर्नमेंट। अखनूर के सरहदी इलाके परगबाल की गोडामानसा पंचायत में नहर की सफाई न होने से लोग परेशान हैं। मकामी लोगों ने एहतजाज दर्ज कराते हुए नारेबाजी की। किसानों ने खुद जमा होकर नहर की सफाई शुरू कर दी। इन किसानों का कहना था कि यह वक्त धान लगाने का है, लेकिन इंतजामिया नहरों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। लोगों ने पूछा कि नहरें साफ न होने पर वो कैसे फसल लगा पाएंगे। इस छोटी नहर की सफाई अभी तक नहीं की गई, जिससे लोग सरकारी इंतजामिया पर बरहम हैं। लोगों ने कहा कि एक तरफ तो हुकूमत किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करती है और दूसरी तरफ आबपाशी के लिए नहरों में पानी दस्तयाब नहीं है। इस महकमे अगवाई करने नहीं धरना ला गए, अस भुख हड़ताल रख गए गवर्नमेंट के खिलाफ। ये जो साढ़े कन्नै जो वातावरण जो बीता करता जो किया है, और इसका अस बिल्कुल सख्त और रोस कर गए हैं। अस भुख हड़ताल पर भी वीडियो ब्लॉग के दफ्तर अस मतलब हो गए। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर का कहना है कि वादी कश्मीर की मेवा सनत को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से कोल्ड स्टोरेज जैसी सहूलियात कायम करने के लिए सब्सिडी फराहम की जा रही है। मीर ने पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट का दौरा करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल डायरेक्टर हार्टिकल्चर ने सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम कोल्ड स्टोर्स और जूस फैक्ट्री का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि काश्तकार अब सेब के साथ साथ चेरी और खुबानी के अलावा दीगर मेवाजात को भी स्टोर कर रहे हैं, जो कि मेवा सनत के लिए काफी अच्छा है। डायरेक्टर के हमरा चीफ हार्टिकल्चर अफसर पुलवामा जावेद अहमद भी थे। 1000 मीट्रिक टन अगर कोई लगाना चाहता है उसके लिए हम सब्सिडी देते हैं। अब अगर 5000 मीट्रिक टन से आगे कोई लेना चाहता है तो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम्स है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आप लोग हैं, आप लोगों तक ये बात पहुँचा सकते हैं कि नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड जो है 5000 मीट्रिक टन से ऊपर जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए वो फंडिंग करते हैं। तो यू कैन टेल द आई हैव एडवाइज्ड ऑलरेडी माय ऑफिसर्स जो है चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर्स फील्ड में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रिशिएट करें, उनको लाएं इस रास्ते पे, उनको लोगों से मिलें और उनको मोटिवेट करें कि
जनूबी कश्मीर के साबिक मीरबाज व मारूफ आलिम दीन मरहूम डॉक्टर काजी निसार की बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। उनके मज़ार पर फातिहा ख्वानी की गई और उनकी दीनी व समाजी खिदमात को सराहा गया। इदारा तहक़ीक़ात इस्लामी में मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी समेत कई उलमाए दीन ने काजी निसार को खराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर काजी निसार को 28 बरस कबल दहलगाम अनंतनाग में बंदूक बरदारों ने कत्ल किया था। इससे कबल उनकी याद में खून के अतिये का एक कैंप और नातिया महफिल भी मुनक़्क़िद। गुरेज में नई बस्ती नामी गांव 13 सालों से मुनासिब पानी की सप्लाई से महरूम है। लोगों के मुताबिक रिफ्यूजी 2 नामी इलाके के 26 कुंबों को 2009 में दावर के करीब बसाया गया था। तब से लेकर आज तक वो मुनासिब पानी की सप्लाई से महरूम है। लोगों के मुताबिक उन्होंने अज खुद एक चश्मे से पानी लाकर उसे एक प्लास्टिक की वाटर टैंक के साथ जोड़ा था, तहम ये तजुर्बा भी ज्यादा देर नहीं चल सका। लोगों के मुताबिक बार बार खराब होने वाले एक खस्ता हाल हैंडपंप से पूरी बस्ती पानी हासिल कर रही है। गुरेज इंतजामिया और दूसरे अफसरान की नोटिस में मामला लाने के बावजूद उनके लिए कोई वाटर सप्लाई स्कीम नहीं बनाई जा रही है। पूजी 2 से वहाँ से रिहेबिलिटेट किया गया, क्योंकि इन दोनों में वहाँ पे बिजली नहीं थी, वहाँ पे रोड नहीं था, टेली कम्युनिकेशन नहीं थी। उस बिना पे हमको वहाँ से रिहेबिलिटेट किया उस वक्त की सरकार ने। लेकिन तब से लेके आज तक 2022 चलता है, आज की डेट तक हम पानी के एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं बहुत। उसने ऐलान किया कि हम मतलब जितने भी गरीब है गरीबों तक पहुंचेंगे, लेकिन हमें अब तक पानी नहीं पहुंचा है, तो हम किस चीज का शुक्रिया अदा करेंगे। लोग तरह रहे पानी के लिए। हम क्या करेंगे जब ट्यूबवेल खराब होता है, क्या करेंगे? कैंप से लाना पड़ता है। एसडीएम बोलता है आप हम करेंगे कुछ करेंगे, तहसीलदार बोलता है हम क्या है, ये क्या है, वो क्या कहा है, क्या कुछ क्या। आप खुद देखो, खुद अपनी नजरों से देखो यहाँ पे कुछ फैसिलिटी है या नहीं। जिला पुलवामा के कंडी इलाकों को मिलाने वाली राब्ता सड़क खस्ताहाली का शिकार हो गई है। अचागोजा से लेकर अबहामा तक की सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, जो कि अक्सर बारिशों में तालाब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। सड़क की हालत खस्ता हो जाने से अबहामा, संगरुनी और इससे मुल्हिका देही आबादियों के मकीनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों अतराफ में हिफाजती बांध की तामीर का काम चल रहा है। मकामी आबादी का इल्जाम है कि हिफाजती बांध बनाने के लिए गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सीमेंट लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन लगाते हैं, दीवार लगाते हैं, बंड लगाते हैं, मगर वो दूसरे साल बिल्कुल गिर जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो ये बैकवर्ड एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जितना यहाँ रोड की जरूरत है, यहाँ इस बारिश होती है, पानी चढ़ता है। हमने बहुत कोशिश की, मैं उन लोगों ने कुछ नहीं इसका किया। कहाँ से ये रोड खराब है? द्रावगामा से अबहामा तक पूरी रोड खराब है। शेख अशफाक ने अपने मरहूम वालिद को अजीम शख्सियत करार दिया है। उन्होंने कहा कि शहीद शेख जब्बार अपने वक्त के सीनियर सियासी लीडर थे। एनसी आइंदा महीने 2 जुलाई को गांदरबल में साबिक वजीर और एमएलए रहे शहीद शेख जब्बार की बरसी मनाएगी। शेख अशफाक जब्बार ने जिला गांदरबल के लार में अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब किया। उन्होंने बताया कि लार में पार्टी की तरफ से शहीद शेख जब्बार ग्राउंड पर शेख जब्बार की बरसी मनाई जाएगी। शेख अशफाक कहते हैं कि उनके वालिद लेजेंडरी लीडर थे। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को खुद कफील बनाते हुए उनके वक़ार को बहाल करना चाहते थे। कई सियासी कारकुनान ने एनसी में शमूलियत इख्तियार की। गोटीबाग जो कंगन के साथ था, अब ये वहाँ से कट के लार के साथ है। लार का कैंडिडेट जो है हमारा शेख अशफाक है, तो हमने शेख साहब के साथ ज्वाइन किया है और अल्लाह ताला के फजल और करम से हम इनके साथ हैं। जब तक ये आगे चलेंगे हम इनके साथ चलेंगे। इनकी एक देन है इस कौम को, ख़ुसूसन जिला गांदरबल को, तो वो अब फरामोश नहीं कर सकते हैं। गांदरबल की जो तवारीख है, जो हिस्ट्री है, शेख अब्दुल जब्बार के बिना इनकम्प्लीट है। तो वो कोई दिन नहीं होगा जिस दिन यहाँ नए लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है। कारवान है जो आगे चलेगा और इसमें लोग जुड़ते जाएंगे। पीडीपी ने शोपियां में जोनल ब्लॉक और दीगर जिले एग्जीक्यूटिव बॉडीज में तब्दीलियां की हैं। हालिया हदबंदी के नतीजे में मुतादिद मेंबरान के दायरे इख्तियार को लेकर तजब्जुब पैदा हो गया था। पीडीपी के तमाम सीनियर मेंबरान, जिला सदर एजाज अहमद मीर, रियासती सेक्रेटरी गुलाम मोहिउद्दीन वानी और दीगर की मौजूदगी में पार्टी अरकान के नए दायरे इख्तियार तय कर दिए गए। पीडीपी लीडर यावर बांडे ने कहा कि हालिया हदबंदी के बाद मुख्तलिफ हलकों की हदूद
तब्दील हो चुके हैं। PDP शोपियां के हर गांव, ब्लॉक और जोन से एक तंजीमी जंजीर कायम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अवाम गवर्नर इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। हर एक को अपने बुनियादी हकीकी मुतालबात के लिए LG तक रसाई हासिल नहीं है। डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ, उस वजह से कुछ जो गांव है शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी के वो वची कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए और वची कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ इलाके हैं वो शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ गए। एज ए रिजल्ट हमने जो प्रोमिनेंट वर्कर्स है उनको बुलाया, जो नए इलाके हैं उनको भी बुलाया हमने, तो उनकी एक राय भी लेनी थी। इलेक्शन सेंट्रल रूल है, BJP रूल कर रही है पूरे मुल्क में, तो गवर्नमेंट उनकी है, सिस्टम उनका है, उन्हीं को पता होगा इलेक्शंस कब होने हैं। जैसे आपको पता चल गया, कल इन्होंने इलेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट की है, रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ्स भी स्टार्ट की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज कुपवाड़ा हल्के के वर्कर्स की एक मीटिंग मुनक्किद की गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मीर सैफुल्लाह ने इस दौरान वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें ताकि आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार तश्कील दे सके। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के दर्जनों वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। मीर सैफुल्लाह ने कहा कि 5 अगस्त के फैसलों की वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और सुपुर के साबिक MLA हाजी अब्दुल रशीद डार ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कांग्रेस को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने की अपने कारकुनों को हिदायत दी। हाजी अब्दुल रशीद डार डंगरपुरा सुपुर में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत ने तरक्की के झूठे वादे आवाम से किए हैं। ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए सरगर्म हो जाने का उन्होंने सिविल इंतजामिया से मुतालबा किया। पार्टी के तर्जुमान शेख आमिर ने भी इस इज्तिमा से खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जिसने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुल्क के लोगों के लिए काम किया। उनके मुताबिक मुल्क के शहरी मोदी हुकूमत के फ़िरकावाराना एजेंडे से उकता चुके हैं। हमाजियत तरक्की के लिए तब्दीली नागुज़ीर हो गई है। मुख्तलिफ मकामात से आए पार्टी कारकुनान शरीक थे। अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी अल्ताफ मलिक ने ज़ालाबारी और दीगर कुदरती आफात से भारी नुकसान उठाने वाले फल काश्तकारों को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने किसानों के कर्जों को माफ़ करने की भी हुकूमत से गुजारिश की। अल्ताफ मलिक अचबल रफियाबाद में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा किया ताकि एक मुंतखब हुकूमत के जरिए आवाम के रोज़मर्रा के मसाइल के खात्मे की राह निकाली जा सके। इस कन्वेंशन में बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की और आम लोगों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अल्ताफ ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करे और इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। यूथ BJP जिला कुलगाम ने रियासत में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद कराने का खैर मकदम करते हुए कहा कि पार्टी तैयार है। यूथ जिला सदर जुबैर अहमद गनाई की क़यादत में BJP सरकार के 8 साल मुकम्मल होने पर एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया जो कि कस्बा कुलगाम से होते हुए डाक बंगला में इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में कई नौजवानों ने शिरकत की। वाला है और इंशाल्लाह होगा। आइंदा अगले 2, 3, 4 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन होगा कश्मीर के अंदर। और जो आज ये बाइक रैली है ये इलेक्शन का इसके साथ कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो सेलिब्रेट 8 साल हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये आज जो बाइक रैली थी ये हमने उसके लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा था। कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफत की तरफ से शोलेपुरा बडगाम में मारूफ अदीब गुलाम नबी गौहर की 4थी बरसी के मौके पर एक अदबी सेमिनार का इनेकाद किया गया। वादी के सरकर्दा अदीबों, शायरों और दानिशवरों ने हिस्सा लिया। यह सेमिनार 3 नशिस्तों महफिल नात व मनक़बत, महफिल मक़ालात, महफिल एजाज़ पर मुश्तमिल था। गुलाम नबी आतिश ने पहली नशिस्त की सदारत की। दूसरी नशिस्त के दौरान ऐवान सदारत में रफ़ीक मसूदी, प्रोफेसर बशर बशीर, मोहम्मद अमीन भट्ट और रंजोर तलगामी मौजूद थे। डॉक्टर फयाज अली एहसन, मुश्ताक मुहर्रम और गुलाम मोहम्मद नादिम ने तबसरे किए। साल 2022 का गौहर मेमोरियल अवार्ड मारूफ हिदायतकार और फिल्मसाज मोहिउद्दीन मिर्जा को पेश किया गया। अबुल हसन फारूकी, प्रोफेसर बशर बशीर, हाजी अली मोहम्मद, फारूक अहमद वानी, मुश्ताक मुहर्रम, डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, शबनम तलगामी, मोहम्मद अमीन भट्ट,
डॉक्टर गुलजार अहमद राथर, अब्दुल रशीद शाद और दीगर सरकर्दा दानिशवरों को एजाज से नवाजा गया। गुलाम नबी गौहर के अदबी, सकाफती व समाजी कारनामों पर तबसरे किए गए। इसका मकसद एक तो ये था कि अली मोहम्मद डार साहब अपने उस्ताद के हक अदायगी करते थे, और दूसरी ये थी कि गौहर साहब के वो गौहर बाहर लाए जाएं जो अभी तक छुपे हैं। गौहर साहब न सिर्फ एक अदीब थे, शायर थे, बल्कि वो एक मुस्तनद तारीख दान भी थे, क्योंकि उनके हर चीज़ में तारीख का हवाला मिलता था। जब भी वो कोई बात करते थे उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ करता था। गौहर साहब ने जो वो हमको तरबियत दी, जो हमको उन्होंने हमें अपने राइटिंग से नवाजा है, और उसका पैरेलल ढूंढना बहुत मुश्किल है। एंड वो ही से लेजेंड, दैट इज़ व्हाट आई कैन से अबाउट गौहर साहब। गौहर साहब के तई अपना खराज अक़ीदत पेश किया, और बाकी भी जो जितने शुरका यहाँ पे थे उन सब की तरफ से गौहर साहब के उस कंट्रीब्यूशन को, जो एक नहायत ही मुनफरिद किस्म का कंट्रीब्यूशन है, बहसियत एक शायर के, बहसियत एक नावल निगार के, बहसियत एक अलमदार शनास के, जो उन्होंने ज़िंदगी पर काम किया है। और यहाँ पे इस बात का भी ज़िक्र हुआ कि उनकी जो अनपब्लिश्ड वर्क्स हैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वो भी देखने को मिलेंगी। युजमर्ग बडगाम में फेरोज कल्चरल सोसाइटी बादीपुरा बडगाम की तरफ से मुनक्कदा 2 रोज़ा थिएटर कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ। ये कॉन्फ्रेंस युजमर्ग के टूरिस्ट रिसेप्शन हॉल में मुनक्किद हुई। अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन बट मेहमान खुसूसी थे। फेरोज कल्चरल फोरम के डायरेक्टर मोहम्मद रफीक डार ने डॉक्टर अजीज हाजनी को खराज अक़ीदत पेश किया। नामवर ड्रामा निगार और वहाब कल्चरल सोसाइटी हाजिन के जनरल सेक्रेटरी मजीद मजाजी ने कश्मीरी थिएटर से मुताल्लिक़ एक मकाला पेश किया। हल्क़ा अदब सोनावारी के सदर शाकर शफी ने फेरोज कल्चरल सोसाइटी के तमाम मेंबरान को इस किस्म की कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करने के लिए मुबारकबाद पेश की। मारूफ ब्रॉडकास्टर अजहर हाजनी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। फेरोज कल्चरल फोरम के सदर शाहिद शब्बीर ने डॉक्टर अजीज हाजनी और थिएटर ग्रुप के मेंबर मरहूम मोहम्मद अशरफ को खराज पेश किया। मोहम्मद अमीन बट ने थिएटर की नज़ाकतों और तकनीक की हसासियत का जिक्र किया। डॉक्टर हाजनी पर उन्होंने कहा कि उनकी वफात से कश्मीर के लिसानी और सकाफती मंजरनामे में एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। महफिल समा का एहतमाम किया गया और एक ड्रामा पेश किया गया। सुरनकोट तहसील मरकज में आज गुजरी नज़मों की पहली किताब पाख्त पांबर की रस्म इजराई का एहतमाम किया गया। खातून अदीब और कलमकार चौधरी जाहिदा खानम की नज़मों की ये पहली किताब है। रस्म इजराई तकरीब में इलाके के अदीब और शायर शामिल रहे। सुरनकोट के साबिक MLA मोहम्मद अकरम और चौधरी जाहिदा खानम ने इस तकरीब की सदारत की। DDC चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थीं। उन्होंने चौधरी जाहिदा खानम की इस काविश की सताइश की और ख़वातीन से गुजारिश की कि वो अपने अपने मैदान अमल में आगे आएँ। चौधरी जाहिदा ने कहा कि गुजरी में मर्द कलमकारों की हज़ारों किताबें हैं, लेकिन किसी खातून की ये पहली गुजरी किताब है। नौजवान अदीबों कलमकारों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए खित्ता पीर पंचाल में स्टेज मैसर नहीं कराने पर उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की। की फील्ड में मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बहन आए, कोई ना कोई और काम ना करे, लेकिन जैसे वो मुमकिन हो अपनी ज़ुबान की, अपने अदब का, अपना जो उसका किरदार हो अदा करे, ताकि आज हम जो गुज्जर कौम की लड़कियाँ पिछड़ी हुई हैं ये नहीं कर सकती, ताकि आने वाले सब डिवीजन रामसू के इलाके नील बाटो से टॉप नील को जाने वाली सड़क राब्ते पर केबल के लिए खुदाई से पहुंचे नुकसान के बाद मरम्मत का काम शुरू किया गया। ताहम गैर मयारी मटेरियल के इस्तेमाल से अवाम ने महकमे तामीरात आमा व ठेकेदार के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। अवाम ने हुकूमत इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की मरम्मत व तामीर के लिए मयारी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए और सड़क के साथ ड्रेनेज निज़ाम भी बनाया जाए। जो वालों ने कटिंग से रोड बहुत खस्ता हो गए, तो हमारी चाहते है कि अगर दोबारा बनने हो रहा है ये भी शायद बराबर होने के बराबर है, क्योंकि अगर ब्लैक टॉप होना तो कम से कम इसमें तो 5 से 7 निकलना चाहिए। अगर यही हालत रही तो इसको मेरे हिसाब से महीना भी नहीं निकलेगा। तो क्या अपील करेंगे हुकूमत व इंतजामिया से आप? इंतजाम यही करेंगे रोड ठीक होना चाहिए।
खराब ये वाला पोरी दवा या तो नाल जरूरत है आप गसन वजह में ऐसी मुश्किलात गसन अच्छा या तो जैसे कि नाल वाले तो पानी के जैसे खड़वाड़ तो गसन तो थोड़ा मुश्किलात जैसे खत्म। म्यूनसिपल कमेटी मागाम की जानिब से काफ़ी अरसे से पहले बैतुल खला तामीर किए जाने के बाद भी इनको लोगों के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया गया। ये बैतुल खला तालाबंद हैं। राहगीरों और गुलमर्ग जाने वाले सयाहों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। मागाम में लोगों ने एहतजाज किया। वस्ती कश्मीर में मागाम मार्केट सबसे बड़ा बिजनेस हब माना जाता है। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। हज़ारों सयाह भी मागाम मार्केट से ही गुजर कर सयाहती मकाम गुलमर्ग जाते हैं। कम से कम मैं उनसे इल्तिजा कर रहा हूँ, इसको खोल दिया जाए ताकि आवाम के लिए अगर बनाया गया तो आवाम को वाकिफ करो। आदमी दाई बाई देख के मैं कहाँ जाऊँ बाथरूम के लिए, तो अगर यहाँ बनाए हुए पैसे खर्च किया है तो उसको इस्तेमाल के लिए खोल दिया जाए। यहाँ अवरतें आते हैं, यहाँ हमारे माँ बहने आते हैं, उनको बाथरूम के लिए जाना पड़ता है। यहाँ बाथरूम बिल्कुल बंद होता है, जो बाकी आप पर्सनल बाथरूम है वहाँ जा नहीं सकते। हम इल्तिजा करते हैं ऐसे आला हुकाम से कि मेहरबानी करके ये बाथरूम खोल दिया जाए। की बात सही है कि हमने CTPT बनाया है अड्डे में एक टॉयलेट ब्लॉक, वो अभी 100% कंप्लीटेड है। अभी RNB ने हमें वो हैंड ओवर नहीं किया है। मुझे लगता है जल्दी हैंड ओवर होगा, इसी हफ्ते में हम उसको पब्लिक के लिए यूज करेंगे। किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की अहम मीटिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन पूजा ठाकुर की सरबराही में ये इजलास मुनक्किद किया गया। पकलदुल के अलावा चनाब तास में दीगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के अलावा हवाले से उमूर पर यहाँ तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने अक्टूबर 2008 में याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत कराए थे। उस दौरान तय मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। काउंसिल ने प्रोजेक्टों से मुतासर हो रहे खानदारों के मसाइल उठाए। मकामी मकीनों के तालीमी, रोजगार और रिहाइश के मसाइल पर तफसीली अंदाज में बातचीत हुई। जिले के बेरोजगार नौजवानों को प्रोजेक्ट्स में मुलाजमत के लिए 20% कोटे पर भी बात हुई। और जो एरिया डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो हमें प्रोवाइड किए जाए, ताकि अगर इतने प्रोजेक्ट यहाँ बन रहे हैं तो डेवलपमेंट भी उसी तरीके की होनी चाहिए। इतना पैसा ये लोग यहाँ से अर्न करके जाएंगे तो हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट के लिए जो इतना कम परसेंटेज है वो क्यों रखा गया। GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट श्रीनगर की जानिब से आज त्राल के चित्रगाम और लाम जवाहरपुरा में मुफ्त मेडिकल कैंपों का एहतमाम किया गया। चित्रगाम में मेडिकल कैंप का इफ्तिताह DDC मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने किया। सैकड़ों बीमारों का इलाज व मुआवजा किया गया और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। लोगों ने ट्रस्ट के इस इक़दाम की सराहना करते हुए कहा कि इस किस्म के कैंप गरीब अवाम के लिए सूदमंद साबित होते हैं। GR बेग मेमोरियल की चेयरमैन इश्तियाक बेग ने बताया कि वो गुज़श्ता 25 वर्षों से इस तरह के कैंप मुनक्किद करा रहे हैं। आज त्राल के छत्रगाम और लाम इलाके में भी मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किए गए। दो मेडिकल कैंप थे, एक ख्वाजा शेख अजीमुद्दीन की याद में हम मुनक्किद कर रहे हैं। एक तो हमने सुबह छतरुगाम में किया था जो कि एक्सक्लूसिवली सिख कम्युनिटी के लिए था। तो इन्होंने छतरुगाम को चुना। छतरुगाम इज द ओनली विलेज इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जहाँ 100% सिख पॉपुलेशन है, और यही कश्मीर है, यही नया कश्मीर है जो उसकी बात करते हैं ना। वो कश्मीर जो ये लोग बेचते हैं ये कश्मीर नहीं है, ये है कश्मीर जहाँ मुस्लिम ट्रस्ट जो है वो कहता है कि हमने सरदार गांव को चूज करना है त्राल में और वहीं पे कैंप करना है, वहीं पे हमने बीमारों की तैमारदारी करनी है, और यही यहाँ की परंपरा है और यही हमारी कश्मीरियत की निशानी है। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के इश्तराक से लारकीपुरा अनंतनाग में पावर लिफ्टिंग इवेंट का एहतमाम किया गया। यूथ एम्पावरमेंट क्लब में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए वेट लिफ्टर्स ने हिस्सा लिया। फौज के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद कश्मीरी नौजवानों में फिटनेस के चलन को आम करना है और उन्हें मुनशियात जैसी बुरी आदत और दीगर समाजी जराइम से दूर रखना भी चाहते हैं। मकामी लोगों ने इस तरह के प्रोग्रामों का खैर मकदम करते हुए इसे नौजवान नस्ल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद करार दिया। बड़गाम अभी बंदे आ रहे हैं अवंतीपुरा से भी, तो हमारा मकसद यही है कि हमारी जो अभी यूथ है ड्रग्स के बजाय फिटनेस की तरफ आ जाएं। तो यहाँ पे हमारा मनप्रीत सर हैं, CO सर लारकीपुरा में, उन्होंने हमारे साथ आज कोऑपरेट किया। तो चैलेंज के साथ कह सकते हैं जो भी पेरेंट, जो भी फादर
या जो भी मदर अपने बच्चे को जिम में एडमिट करेगी तो हम चैलेंज कर सकते हैं आपके सामने इस मीडिया की वसादत से, वो कभी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। कि सब जिम जाए, क्योंकि ड्रग भी होते हैं इससे, मतलब कि गलत काम की तरफ कोई चांस ही नहीं होता है कि कोई गलत काम करे। और मैं शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का भी, जो हमें यहाँ पे मतलब कि इतनी अकोमोडेट कर रही है, इतनी फैसिलिटी यहाँ पे दी है, सक्सेसफुल बनाने में उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। जंतराग खेरू पामपुर में तहसीलदार पामपुर जुबैर अहमद की सदारत में एक पब्लिक दरबार प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल हुक्काम के सामने रखे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने लोगों की शिकायत दर्ज की और उन्हें यकीन दिलाया कि तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल किए जाएंगे। पे आज तहसीलदार साहब ने दौरा किया। इस बारिश के बावजूद भी बहुत कुछ मसाइल थे इलाके में, यहाँ कोई डोमिसाइल का था या जो पानी का मसला था, बहुत कुछ ज़्यादा मसला था इलाके में, तो उठाए तहसीलदार साहब के सामने। मुझे लगता है हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत कोऑपरेटिव तहसीलदार साहब है, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम। जिला कठुआ के बनी तहसील में पड़ने वाले बाड़ी इलाके के लोगों ने सरकारी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। ये लोग ट्रांसपोर्ट की सहूलत को दुरुस्त कराने का मुतालबा कर रहे हैं। इन लोगों ने लगभग 2 घंटों तक बानी ढगर सड़क पर भी ट्रैफिक जाम करके मुजाहरा किया। लोगों ने बताया कि बानी से ढगर के लिए जो भी निजी मुसाफिर गाड़ियां चलाई जाती हैं वो एक भी नहीं चलाई गई, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेजों को जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेटाडोर वाले हैं, इनका कोई टाइमिंग नहीं है जहां पे चलने की, जहां पे पब्लिक सफर कर रही है। हम बोलते हैं कि कोई बुकिंग भी उठाए, कोई बात नहीं, बुकिंग उठाए, लेकिन 2 गाड़ियों को बुकिंग पे रखा जाए, बाकी 4 जो मेटाडोरें होनी चाहिए थी वो कहां पे होती हैं। उनको तो रोड पे चलना चाहिए, उनके टाइम के मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि जनता सफर करती है। जहां हमारे बच्चे कॉलेज और हाई सेकेंडरी बनी में पढ़ते हैं, वो कई बार हमने तरनाली से पनियाले से और रास्ते से वापस होते हुए देखे। हमने उनको पूछा कि बात क्या है भाई, तो उन्होंने बोला गाड़ी नहीं है। या तो उसके कान में सुनाई नहीं देता प्रशासन के, तो या तो फिर यूनियन हैवी हो गई। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल को लक्ष्य प्रोग्राम के तहत कौमी अवार्ड मिला है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर जुल्फकार अली ने बताया कि पुंछ का ये अस्पताल जम्मू कश्मीर के उन 2 अस्पतालों में शामिल है जिसे ये एजाज दिया गया। कश्मीर के JLNM अस्पताल को भी सनद से सरफराज किया गया है। अस्पताल इंतजामिया ने कौमी एजाज मिलने पर मसरत जाहिर की। स्टेट में 2 हॉस्पिटल हैं जिनको अभी ये लक्ष्य अवार्ड मिला है। एक तो हमारा श्रीनगर का जो हॉस्पिटल है वो JLNM हॉस्पिटल, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में से 22 डिस्ट्रिक्ट में से हमारा डिस्ट्रिक्ट पूंछ है जिसको ये अवार्ड मिला है। हम इसमें बड़ा फख्र की बात महसूस करते हैं कि हमारे स्टाफ ने इतनी मेहनत की, वो नेशनल लेवल पर अपने आप को मनवाया कि हमारा जो हॉस्पिटल है ये सर्टिफाइड है। इसके लिए जिला पुंछ मंडी तहसील में LOC पर वाक़े गांव बेदार में मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। आर्मी की 25 RR ने यहां यह एहतमाम कराया। महकमे सेहत के डॉक्टर भी मौजूद रहे। बेदार, बलूनी और जलियां देही इलाकों के लोगों ने फ़ायदा उठाया। अपनी तिब्बी जांच करा के इलाज की सहूलत हासिल करने के लिए यहां बड़ी तादाद में लोग जमा थे। फौज ने उन्हें मुफ्त में अदविया दस्तियाब कराई। 500 से ज्यादा लोगों के मेडिकल टेस्ट किए गए। सरपंच मोहम्मद रफीक मदनी ने फौज का शुक्रिया अदा किया।